جنوبی افریقہ کی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی۔ لاہور ٹیسٹ 93 رن سے شاہینوں کے نام ہوا۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 277 رنز کا ہدف دیا تھا، جس کے تعاقب میں پروٹیز کی پوری ٹیم 183 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ قومی ٹیم نے میچ جیت کر سیریز 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ پاکستان کے نعمان علی نے دونوں اننگز میں 10 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جبکہ ساجد خان نے 5، شاہین شاہ افریدی نے 2 اننگز میں 4 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پاکستان ٹیم کو مبارکباد، کہا ساؤتھ افریقہ کے خلاف کامیابی ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ امید ہے قومی ٹیم دوسری ٹیسٹ میں بھی کارکردگی کا تسلسل برقرار رکھے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، جنوبی افریقہ کی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی۔ لاہور ٹیسٹ 93 رن سے شاہینوں کے نام۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 277 رنز کا ہدف دیا تھا، جس کے تعاقب میں پروٹیز کی پوری ٹیم 183 رنز پر ڈھیر۔ قومی ٹیم نے میچ جیت کر سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ پاکستان کے نعمان علی نے دونوں اننگز میں 10 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جبکہ ساجد خان 5، شاہین شاہ افریدی نے دونوں اننگز میں 4 وکٹیں حاصل کی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پاکستان ٹیسٹ ٹیم کو مبارکباد، کہا ساؤتھ افریقہ کے خلاف کامیابی ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ امید ہے قومی ٹیم دوسرے ٹیسٹ میں بھی کارکردگی کا تسلسل برقرار رکھے گی۔ پنجاب کے تعلیمی بورڈز نے انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 2025 کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ ملتان میں فرسٹ ایئر پاس کرنے والے طلبہ کی شرح 57.46% رہی۔ 74,329 امیدواران نے فرسٹ ایئر کا امتحان دیا۔ کنٹرولر امتحانات حامد سعید، سیکریٹری بورڈ خرم شہزاد نے رزلٹ آن لائن کیا۔ بہاولپور سے 11ویں جماعت کے امتحان میں 57,720 طلبہ نے شرکت کی۔ 29,981 امیدوار کامیاب ہوئے۔ کامیابی کا تناسب 53.17% رہا۔ ڈیرہ غازی خان میں 11ویں جماعت کے امتحانات میں کامیابی کی شرح 62.37% رہی۔ 54,954 امیدواروں نے امتحان میں شرکت کی۔ سرگودا تعلیمی بورڈ میں کامیابی کا تناسب 57.04% رہا۔ 56,205 طلبہ نے امتحان میں حصہ لیا۔ 31,278 طلبہ نے کامیابی حاصل کی۔ پنجاب کے تعلیمی بورڈ کی جانب سے انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 2025 کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ ملتان میں فرسٹ ایئر پاس کرنے والے طلبہ کی شرح 57.46% رہی۔ 74,329 امیدواران نے فرسٹ ایئر کا امتحان دیا۔ کنٹرولر امتحانات حامد سعید، سیکریٹری بورڈ خرم شہزاد نے رزلٹ آن لائن کیا۔ بہاولپور سے 11ویں جماعت کے امتحان میں 57,720 طلبہ نے شرکت کی۔ آپ کو بتائیں 29,981 امیدوار کامیاب ہوئے۔ کامیابی کا تناسب 53.17% رہا۔ ڈی جی خان میں فرسٹ ایئر کے امتحانات میں کامیابی کی شرح 62.37% رہی۔ 54,954 امیدواروں نے امتحان میں شرکت کی۔ سرگودا بورڈ کی بات کریں، سرگودا تعلیمی بورڈ میں کامیابی کا تناسب 57.04% رہا۔ سرگودا کے 56,205 طلبہ نے امتحان میں حصہ لیا۔ سرگودا کے 31,278 طلبہ نے کامیابی حاصل کی۔ ملتان بورڈ کے فرسٹ ایئر رزلٹ میں کپس گرلز کالج کی طالبہ نساء احمد نے کامرس گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ نساء نے 600 میں سے 572 نمبر حاصل کیے۔ کہتی ہیں یہ کامیابی مسلسل محنت اور والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ مزید ان کا کیا کہنا ہے، جانتے ہیں شکیل سلطان سے۔ جی، میرے ساتھ ملتان بورڈ کی ٹاپر نساء احمد موجود ہیں۔ کپس گرلز کالج سے ان کا تعلق ہے اور 572 نمبر حاصل کیے ہیں۔ کامرس گروپ میں اسٹڈی کر رہی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ان کی کامیابی کا دن ہے۔ والدین بھی خوش ہیں اور ادارہ بھی ان پر فخر کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ آج کا دن بڑا آپ کی کامیابی کا دن ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ آج سب نے مبارک بھی دی ہوگی اور آپ کو بھی خوشی ہوگی۔ جی بالکل، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اللہ نے کامیابی دیا ہے ہمیں، ہمارے ٹیچرز نے محنت کیا اور ہمارے لیے میرے لیے یہ دن آیا، تو بہت خوشی کی بات ہے۔ مطلب سچ اے پراؤڈ مومنٹ کہ میرے پیرنٹس نے محنت کی، مجھے یہاں تک جو ہے انہوں نے پہنچایا، تو آج ان کے لیے میرے سے زیادہ ان کی کامیابی ہے، میرے ٹیچرز کی کامیابی ہے۔ ایک سال میں کیسے محنت کی، کیا کیا ٹیکنیکس ہیں آپ کی پڑھائی کی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسے ایک بچہ ٹاپر بن سکتا ہے اور آپ کیسے ٹاپر بنی؟ ہمارے ٹیچرز ہیں ایسے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس طرح پڑھایا کہ ہم نے ایک بالکل وہ سبجیکٹ جس کی ہم نے ABC بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی، بالکل بھی سٹارٹ کرنا تھا، اس میں ہم پوزیشن لینا نا، ڈیفینیٹلی یہ ہمارے ٹیچرز کی جو ہے وہ۔ اکیڈمی رکھی تھی کوئی؟ نہیں، اکیڈمی کوئی بھی نہیں، مطلب کالج والوں نے اتنا اچھا پڑھایا تو اکیڈمی۔ اور 24 گھنٹے میں کتنی دیر پڑھتی تھی؟ 24 گھنٹے میں بس یہ ہے کہ جو ٹائم کالج کا ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، اس کے بعد گھر جا کے بس یہ تھا کہ ریویژن کرنی ہوتی تھی اور ٹیسٹ ریوائز کرنے ہوتے تھے۔ آگے کیا بننا ہے اور سیکنڈ ایئر میں کیا لگتا ہے؟ سیکنڈ ایئر میں انشاءاللہ جو ہے دوبارہ پوزیشن کی طرف جاؤں گی اور میرے آگے ACCA کا سوچا ہوا ہے،
इंशाल्लाह ACCA करना। और जो मेरे फेलोज़ हैं उनके लिए भी यही है कि दिल छोटा नहीं करते, इट्स ओके, इस बार नहीं आ पाई पोजीशन तो नेक्स्ट टाइम मेहनत करें, डेफिनेटली इंशाल्लाह आ जाएगी उनकी पोजीशन। निसा अहमद पुरअज़म है अपने मुस्तकबिल के हवाले से भी और अपना कामयाबी का क्रेडिट अपने टीचर्स को दे रहे हैं, वालिदैन की मेहनत और दुआओं को भी दे रहे हैं, और साथ में जो फेलो स्टूडेंट और जो नए स्टूडेंट्स अब एडमिशन ले रहे हैं उनको भी मैसेज दे रहे हैं कि मेहनत करें, टीचर की और अपने। बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। दूसरी जानिब अहमदपुर लम्बा में बढ़ती हुई महंगाई से जहां शहरी परेशान दिखाई देते हैं तो दूसरी जानिब दुकानदार भी शिकवा कुना है। शहरी कहते हैं आटा और चीनी की कीमतें बढ़ने से 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो चुकी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आबिद हुसैन से। आबिद बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त अहमदपुर नमक की मेन मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर महंगाई से तंग शहरी जो मजीद परेशान दिखाई दे रहे हैं और आटा और चीनी की बढ़ती हुई कीमतें जो हैं उनसे परेशान हैं। मजीद मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं कि चीनी और आटे के हवाले से, बढ़ती कीमतों के हवाले से आप क्या परेशानी है आपकी? जी बहुत परेशानी सर, चीनी सर 150 190 रुपये हो गई। सुनी अब आटा सर अल्लाह के रखने के में 110 120 हो गया। हम लोग कहाँ जावे, सारे जाए अड्डे पे गाड़ियाँ कूटते हैं, शाम को घर से कोई शाय नहीं मिलती सर, इतनी महंगाई कर दी हम लोगों ने। ये बराए मेहरबानी थोड़ा हाथ हल्का रखवाएं शहर। आटे की वजह से जो है ना जो हमें 10 किलो वाला 10 थैले मिलते हैं फ्लोर मिल की जानिब से, और आटा जो है ना रक्शे वाला हमें कहता है कि हम जो है ना मजीद किराया, हमारा 10 थैली के लिए हमारा गुजारा नहीं होता, 10 थैली की वजह से वो जाते नहीं है, इसलिए हमें जो आटा के लिए मुश्किलात सामना पड़ते थे। हमें आटा जो है वो नायाब हुआ पड़ा है, मार्केट में आटा नहीं है, सरकारी रेट तो दे देते हैं लेकिन हमें आटा जो है ना फ्लोर मिल वाले मुहैया नहीं करते आटा। जी, जैसा कि आपने जो शहरी की बात सुनी और दूसरी जानब जो है वो दुकानदार है जो किराना स्टोर के, उनका भी कहना है कि आटा हमें जो है सरकारी फैक्ट्रियों से नहीं मिलता, जबकि हमें चीनी भी जो है वो अपना ऊपर से जो है मार्केटों से जो है होलसेल मार्केट से महंगे दाम मिलती, जिसकी वजह से हमारी भी मजबूरी है और शहरियों से अक्सर औकात हमारी जो है ये बहस होती है, जिस पर हमारा भी आला हकाम से मुतालबा है कि कंट्रोल किया जाए ताकि और शहरी और हम भी दुकानदार सुख का सांस ले सकें। जी शुक्रिया आबिद हुसैन। सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 24 घंटों में फी तोला सोने की कीमत में 6,000 रुपए का इजाफा हुआ है। 24 कैरात तोला सोना 4,52,000 रुपए का हो गया। 22 कैरात सोना 4,14,333 रुपए फी तोला रिकॉर्ड किया गया। फी तोला सोने की कीमत में तेज तरीन इजाफा, मार्केट में हलचल है। 24 कैरात तोला सोना 38,745 रुपए फी ग्राम फरोख्त होने लगा है। 22 कैरात सोना 35,185 रुपए फी ग्राम हो गया। आपको अपडेट करें, सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 24 घंटों में फी तोला सोने की कीमत में 6,000 रुपए इजाफा। 24 कैरात सोना 4,52,000 रुपए फी तोला हो गया। 22 कैरात सोना 4,14,333 रुपए फी तोला रिकॉर्ड। फी तोला सोने की कीमत में तेज तरीन इजाफा, मार्केट में हलचल। 24 कैरात सोना 38,745 रुपए फी ग्राम फरोख्त होने लगा। 22 कैरात सोना 35,185 रुपए फी ग्राम हो गया। आपको अपडेट करें, सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 24 घंटों में फी तोला सोने की कीमत में 6,000 रुपए इजाफा। 24 कैरात सोना 4,52,000 रुपए फी तोला हो गया। 22 कैरात सोना 4,14,333 रुपए फी तोला रिकॉर्ड। फी तोला सोने की कीमत में तेज तरीन इजाफा। तफसीलात से आगाह करेंगे फराज रमजान। जी बिल्कुल, सोने की कीमतों के हवाले से अगर आपको आगाह करते चले तो सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान जारी है। इस वक्त सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जो है वो पहुंच चुका है। अगर सोने की कीमत में इजाफे की बात करते चले तो 24 घंटों में सोने की फीसों की कीमत में 6,000 रुपए का इजाफा देखने में आया है। खालिद 24 कैरात सोने की कीमत पहली मरतबा 4,52,000 रुपये तोला हो चुकी है। जबकि 22 कैरात सोने की बात करें तो 22 कैरात सोना इस वक्त सराफा मार्केट में 4,14,333 रुपये फी तोला रिकॉर्ड किया गया है। ताहम फी तोला सोने की कीमत में तेज तरीन इजाफा होने से मार्केट में काफी जो है वो हलचल है, क्योंकि इस बार सोने की जो कीमतें हैं उन्होंने तारीख रकम कर दी है कि पहली मरतबा जो है वो इतना बुलंद तरीन सतह पर रेट पहुंच चुका है। और इस वक्त अगर ग्राम की कीमतों के हवाले से आगाह करें तो 24 कैरात सोना 38,745 रुपये फी ग्राम फरोख्त हो रहा है, जबकि 22 कैरात सोना 35,185 रुपये फी ग्राम फरोख्त किया जा रहा है। हम जो सुना रहे हैं उनका ये कहना है कि
इसी महीने के एंड में 15 दिन बाद जो है वो सोना 5 लाख की बुलंद तरीन सतह पर जो है वो पहुंच जाएगा। 5 सेंचुरियां क्रॉस करने के बाद जो है वो मजीद भी इजाफा होने के चांसेस हैं। लेकिन जो इस वक्त सोने के कारोबार से मुंसलिक जो ताजिर हैं, जो सुनारे हैं, वो काफी परेशान है, क्योंकि उनका कारोबार ना होने के बराबर है। जो कस्टमर है उसकी कुव्वत खरीद भी दिन ब दिन मुतासिर हो रही है। अब सोना इतना महंगा हो चुका है कि जो खरीदार है उनका रुझान आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ जा रहा है और जो सुनारे हैं उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है, जिसका असर सोने कारोबार से मुंसलिक जो दिहाड़ीदार तबका है वो काफी मुश्किलात का शिकार है, उसको भी काफी मुश्किलात सामना करने पड़ रही है। इस हवाले से बात करते चले तो डेली की उजरत भी उनको नहीं मिलती, ताहम ये शादियों का सीजन है। मुल्तान में रोही की निशानदेही पर इंतजामिया हरकत में आ गई। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सईदावाला बाईपास पर गैर कानूनी हायर्स और बस स्टैंड का खात्मा कर दिया गया। गुज़श्ता रोज रोही ने गैर कानूनी बाईपास पर गैर कानूनी हाईएस और बस स्टैंड का खात्मा कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज रोही ने गैर कानूनी हाईएस और बस स्टैंड की निशानदेही की थी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अहमद खान से। अहमद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मुल्तान में एक गुज़श्ता रोज़ जो है वो सैदावाला बाईपास पर जो है वो एक निशानदेही की दी थी, जिसमें जो है वो गैर कानूनी बस और हाई स्टैंड जो है वो कायम किया गया था। सैदावाला बाईपास पर जैसे ही रोही ने उस खबर को उठाया तो फौरी तौर पर इंतजामिया के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने एक्शन लेना जो है वो शुरू कर दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सैदावाला बाईपास। यहाँ पर जो है जो गैर कानूनी बस और हाई स्टैंड था गुज़श्ता रोज़, उसको जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आज जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म जो है वो कर दिया गया है। इस वक्त जो है वो तमाम गाड़ियाँ जो है वो यहाँ से ख़त्म करवा दी गई हैं और साथ साथ जो गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद थी उनको जो है वो भारी जुर्माने जो हैं वो भी किए गए हैं। पर गाड़ी जो है वो 5,000 से 10,000 रुपये जुर्माना जो है उनको किया गया और जो बस स्टैंड था उसको जो है वो ख़त्म भी करवाया। अगर मेरा कैमरामैन बिलाल जो है वो यहाँ पर आपको दिखा सके, कल जो है वो गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर जो है लंबी कतारें जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई थी बस स्टैंड के हवाले से, लेकिन आज जो है वो कोई भी यहाँ पर गाड़ी जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। जो भी गाड़ी आकर यहाँ पर रुकती है, हाईएस हो या बस हो या कोई भी इस तरह से लोकल ट्रांसपोर्ट हो, तो उस पर जो है वो फौरी तौर पर जो है वो ट्रैफिक पुलिस के नुमाइंदे आकर जो है वो यहाँ पर आते हैं, उनको जो है वो भारी जुर्माना कर देते हैं। इसी के साथ साथ जो है वो गुज़श्ता रोज़ जैसे ही रोही ने खबर इसकी निशानदेही की थी तो फौरी तौर पर इंतजामिया के जो नुमाइंदे हैं वो एक्शन में आए हैं और मसाइल जो हैं वो यहाँ पर बहुत पैदा हो रहे थे, जैसा कि यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक की रुकावट जो है वो ट्रैफिक की रुकावट पेश आ रही थी, जिससे शहरियों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। कारोबारी हज़रात के हवाले से बात करें तो उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा था। बात करने के लिए हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या समझते हैं ये जो गैर कानूनी स्टैंड था उसको ख़त्म किया गया, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर, ये बहुत अच्छा इंतज़ाम है ट्रैफिक पुलिस का। कल रोही ने खबर चलाई थी इलीगल स्टैंड के हवाले से, लेकिन आज हम आए तो ये बिल्कुल जगह जो है वो खाली करा दी गई है ट्रैफिक पुलिस वालों ने और बहुत अच्छे इकदाम लेकर ही चल रहे हैं ट्रैफिक वाले। जी बिल्कुल, शहरी भी इस बात का ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक पुलिस ने एक यहाँ पर गैर कानूनी जो स्टैंड था उसको जो है वो ख़त्म करवा लिया गया है। गुज़श्ता रोज़ जो है वो रोही ने निशानदेही की थी, इसी हवाले से जैसे ही खबर नशर हुई तो ट्रैफिक पुलिस ने भी यहाँ पर आके स्टैंड को जो है वो ख़त्म करवाया। मजीद जो है वो शहरियों ने भी आला हुकाम से मुतालबा किया है कि यहाँ पर जो है वो जो पहले स्टैंड जो है वो लगाया गया था दोबारा जो है वो ना लगाया जाए। उसके हवाले से जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ऐसा काम करना चाहिए कि ट्रैफिक जो रुकावट पेश आ रही थी इलीगल स्टैंड के हवाले से तो उसको जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। ये ना हो कि आज ख़त्म किया गया कि 102 रोज़ बाद जो दोबारा यहाँ पर स्टैंड जो है वो लगा दिया जाए। इसी हवाले से शहरियों का मुतालबा है कि इसको जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म करवाया जाए या तो इसको मखसूस जगह जो है वो दी जाए ताकि जो है वो जो ट्रैफिक में रुकावट पेश आ रही थी उसमें जो है वो उनसे बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया। अहमद खान हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। मंडी सादिकगंज में मजदूरी के रेट मुकर्रर ना होने पर मजदूर यूनियन की जानिब से हड़ताल की गई है। दुकानों ट्रक अड्डों पर काम बंद कर दिया गया। गल्ला मंडी की तमाम तर सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गई हैं। आपको बताएं, महंगाई के दौर में गुजारा नहीं, मजदूरी बढ़ाई जाए, मजदूरों का यह मुतालबा है। चंद आड़तियों ने काम ना करने पर मजदूरों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। हालात मजीद कुशीदा हो गए। पुलिस और एलीट फोर्स ने मौका पर पहुंचकर कुशीदगी को खत्म करवाया। सदर मजदूर यूनियन ने कहा, किसी भी सूरत मजदूरों पर जुल्म और तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको अपडेट करें, मंडी सादिकगंज में मजदूरी के रेट मुकर्रर न होने पर मजदूर यूनियन की हड़ताल। दुकानों और ट्रक अड्डों पर काम बंद। गला मंडी की तमाम तर सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गईं। महंगाई के दौर में गुजारा नहीं, मजदूरी बढ़ाई जाए, मजदूरों का मुतालबा। चंद आड़तियों ने काम न करने पर मजदूरों को तशद्दुद का निशाना बना डाला।
हालात मजीद कशीदा, पुलिस और एलीट फोर्स ने मौके पर पहुंचकर कशीदगी को खत्म करवाया। सदर मजदूर यूनियन ने कहा, किसी भी सूरत मजदूरों पर जुल्म और तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करूंगा। खबर है मंडी सादिकगंज से मजदूरी के रेट मुकर्रर न होने पर मजदूर यूनियन की हड़ताल जारी है। गल्ला मंडी की तमाम तर सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गईं। दुकानों ट्रक अड्डों पर काम बंद कर दिया गया। महंगाई के दौर में गुजारा नहीं, मजदूरी बढ़ाई जाए, मजदूरों का मुतालिबा है। सुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम जारी, लेकिन शमसाबाद का जुम्मा बाजार रोड ताहाल इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर। जगह जगह से टूट फूट के शिकार, रोड से गुजरना मुहाल, मदरसे के तलबा, शहरियों और राहगीरों का मुश्किलात का सामना। मजीद तफसीलात जानेंगे सलमान जमीर से। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं शमसाबाद रोड पर और शमसाबाद रोड के ही बिल्कुल साथ ईदगाह रोड है, जहां पर तरक्याती काम बड़ी तेज़ी से जारी है। मगर उसी से मुंसलिक ये एक और रोड है जो कि टूट फूट का शिकार है और बदहाली का शिकार होने के बायस यहाँ से गुजरना जो है वो महाल है। और इस वक्त लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि ये रोड टूट रहा है और इसी के साथ ही ईदगाह रोड बन रहा है? ये पूरी कॉलोनी काफी अरसे से जो है ना, इनका कोई रोड नहीं है। पीछे 2 नंबर स्कूल है बड़ा लड़कियों का, उसमें भी जाके देखे ना, आपको पता चलेगा कि वो रोड तो काफी अरसे से हम बच्चे थे, अब बड़े हो गए हैं, लेकिन अब वो रोड अभी तक नहीं बने। इस इलाके की जितनी भी जोन सी भी कॉलोनी आप देख लोगे ना, उसके अंदर आपको मिलेगा कि कोई रोड भी डैमेज, हर चीज़ डैमेज होगी, हर गटर डैमेज होगा, हर चीज़ डैमेज होगी, हर चीज़ आपको डैमेज ही नजर आए। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर रहते हैं। बाजार के दिन जी जुम्मा भी यहाँ पर लगता है तो कंडीशन बड़ी ख़राब होती है इस रोड की। मजीद जो मदरसे के स्टूडेंट उनसे बात कर रहे हैं। हम इधर तालिब इल्म में मदरसे में पढ़ते हैं, हम आते हैं, बारिश आती है, पानी की दुश्वारी होती है, हम जा नहीं सकते, मदरसे के लिए में इशू होता है। अक्सर भी हमारे तलबा ऐसे होते हैं जो आते हैं, पाँव के अंदर कोई खुड्डा वगैरह कुछ अड़ जाता है, फिर बच्चे गिर जाते हैं। अक्सर इस तरह भी होता है कि मोटरसाइकिल भी पंचर हो जाती है, आने जाने में दुश्वारी होती है, लड़कों को भी और हमें भी होती है। तो हम काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द अज जल्द इसको बनवाएं। जल्द अज जल्द बनवाया जाए, आसानियां पैदा हो। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस वक्त रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है और ये छोटा सा नहीं, ये पूरा रोड की इसी तरीके से पैचेस की लाइन जो है इस रोड पर मौजूद है जो कि टूट फूट का शिकार है। इंतजामिया से गुजारिश की जाती है कि फौरी तौर पर इस रोड की भी मुरम्मत कराई जाए ताकि यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं उनकी जिंदगी जो हैं वो आसान हो सके। जी बहुत शुक्रिया, सलमान जमीर हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। बहावल विक्टोरिया अस्पताल की मेन सड़क खस्ताहाल, सेहतमंद शहरी टूटी सड़कों पर हिचकोले खाकर बीमार पड़ने लगे हैं। अस्पताल की मरकजी शाहराह पैदल चलने के काबिल भी न रही। स्ट्रेचर और व्हील चेयर्स पर मरीजों को इमरजेंसी से दूसरे वार्ड मुंतकिल करना दुश्वार हो गया। तफसीलात से आगाह करेंगे ताहिर जोधियाना। बिल्कुल जी, बहावल विक्टोरिया अस्पताल की सड़कों की बात करते चले तो तकरीबन आधे अस्पताल की सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, ये न्यूरोसर्जरी वार्ड सड़क जा रही है और यहां पर गड्ढे पड़ चुके हैं। मैं चाहूंगा मेरा कैमरामैन शाद सलान आपको दिखा रहा है कि ये इस तरह के गड्ढे पड़े हैं। यहाँ पर इन्होंने ये फिल तो कर दिए हैं यहाँ पर मट्टी डालकर, लेकिन जो मरीज यहाँ पर आते हैं खास तौर पर दूर दराज के इलाकों से, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और काफ़ी क्रिटिकल मरीज होते हैं क्योंकि उन्होंने न्यूरोसर्जरी जाना होता है। हमारे साथ एक रक्षा ड्राइवर भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या सूरत है, कब से ऐसे है ये मामला? ये काफ़ी अर्सा हो गया, ये ऐसे है। ये सड़क भी हो गई, वो कॉलोनी वाली बेस सड़कें सारी ऐसी हैं कि मरीज़ बहुत परेशान आते हैं। जो मरीज़ को धक्का लगे, कोई मसला हो, परेशान होते हैं मरीज़ बहुत। और ये हमारे साथ ये देखें आप, इस तरह से इन हालात में ये जो है सवारियां यहाँ पर लेके आते हैं मरीज। आप बताइएगा जी, ये हिचकोले खाती सड़कें अस्पताल की हैं, तो यहाँ पर मरीज तंग नहीं होते? बिल्कुल परेशान हो रहे हैं बेचारे, वो परेशान वाले हैं, जो कोई इमरजेंसी हो वो बहुत मुश्किलात में है सब है। तो कितने अरसे से ये खराब है सर? ये तकरीबन काफ़ी अरसे से है, तकरीबन 7-8 साल से भी ऊपर हो गया, 10 साल से ऊपर तक। इस तरफ देखें, मैं चाहूँगा मेरा कैमरा मैन शाद सलान आपको दिखाएगा। ये देखें, ये सवारियाँ लेके आ रहे हैं और ये मरीज़ हैं, काफ़ी क्रिटिकल मरीज़ होते हैं जिनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ जो ड्राइवर्स हैं आ रहे हैं, जो मरीज़ हैं, उनका यही मुतालबा है कि जो इंतज़ामिया है वो यहाँ पर फौरी तौर पर तवज्जो दे और यहाँ पर जो सड़कें ख़राब हैं, जहाँ गड्ढे पड़ गए हैं और 1-1 फुट गड्ढे पड़ गए हैं, जहाँ पर बारिश होती है तो गुजरना माहौल होता है, इनको मुकम्मल तौर पर दोबारा से तामीर किया जाए ताकि आम शहरियों के साथ साथ मरीज़ जो हैं वो भी इन सड़कों से मुस्तफ़ीद हो सकें। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना आपका। सरगोदा से कराची जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस और हजारा एक्सप्रेस की बंदिश के बाद सरगोदा रेलवे स्टेशन पर वीरानी के आसार नुमाया।
मुसाफिर ट्रेनों की बंदिश से रेलवे आमदोरफ्त मुतासिर, शहरियों का हुकूमत से ट्रेनें बहाल करने का मुतालबा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शेख उस्मान से। हम बात करें तो सरगोदा रेलवे स्टेशन से कराची की 2 ट्रेनें बंद होने की वजह से यहाँ पर वीरानी का समा है। मिल्लत एक्सप्रेस और हज़ारा एक्सप्रेस जो है वो 1 सितंबर से तकरीबन बंद पड़ी है। 1.5 माह गुजरने के बावजूद अभी तक वो रेलवे स्टेशन पर नहीं आई और जिसकी वजह से यहाँ रेलवे स्टेशन भी वीरान पड़ा हुआ है। इसकी वजह से शहरियों को सरगोदा के काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा परेशानी है। हमारे पास इस वक्त समाजी रहनुमा है मलिक इमरान साहब, इनसे हम जानते हैं सर क्या कहेंगे इस हवाले से आप। जी बिल्कुल, दिल बड़ा अफसरदा है, दिल दुखी है रेलवे की ज़बूहाली को देख के। एक तरफ हम मीडिया पे देखते हैं कि वफाकी वजीर साहब हर रोज़ 4 नए डब्बों को रंग करके एक नई ट्रेन का इफ्तिताह कर रहे होते हैं, लेकिन ग्राउंड पे हालात ये हैं कि सरगोदा जो हमारा रेलवे स्टेशन है, जो शहर का एक मरकज़ होता था, रौनक होती थी, चहल पहल होती थी, बिल्कुल वीरान है। आप देखें हू का आलम है। कराची जो लोग जाते थे, हमारे कारोबार करने वाले, हमारे मजदूर तबका, रोजगार वाले, उनके लिए ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। अब लोग कराची बसों पे धक्के खाने पे मजबूर हैं। जी जैसा कि आपने सुना कि इनका भी यही कहना है कि ट्रेनें बंद होने की वजह से शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज तक जो लोग हैं जाने के लिए बसों पे धक्के खा रहे हैं। मुतालबा किया है सरगोदा की आवाम ने, शहरियों ने कि जल्द से। जी बहुत शुक्रिया उस्मान, अपडेट करने के लिए। डीजी खान से खबर दें। डीजी खान में मुशर्रफ चौक से अस्पताल चौक तक सड़क अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। 8 माह गुजरने के बाद भी सड़क की मुरम्मत न हो सकी। सड़क पर मौजूद गढ़ों को मिट्टी से बंद कर दिया गया। तफसीलात से आगाह करेंगे आशान बुखारी। तो मुशर्रफ चौक से अस्पताल चौक की तरफ जाने वाली सड़क अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार। 8 महीने पहले इस सड़क की खुदाई की गई थी सेवरेज लाइन डालने के लिए। सेवरेज लाइन तो डाल दी गई, लेकिन इस रोड की मरम्मती दोबारा नहीं की गई। इस रोड की मरम्मती ना होने के बायस यहाँ के जो राहगीर हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी भाईजान बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है, रोड की मरम्मती नहीं हुई? थोड़ी कमजोरी है, 8-10 महीने देंगे सेवरेज लाइन पातिया ने तो हुण रोड को बढ़ाया नहीं ने, सारा पच्चा पे उंदी धूड़ मिट्टी सारे दुकानदारों को तकलीफ देनी है, आवाम को तकलीफ देनी है, गाजन जेरे अंजन उन्हें को तकलीफ देनी है। तो ऐसा यह गुजारिश करे सो इंतजामिया जल्द से जल्द एक काम फोकस। जो रोड टूट फूट का शिकार है, इसकी वजह से जो राहगीर हैं यहाँ से गुजरते हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि यहाँ के जो शहरी हैं वो इंतजामिया से मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि इस रोड की जल्द अज जल्द मरम्मती मुकम्मल की जाए। बहुत शुक्रिया आशान बुखारी आपका। दूसरी जानिब भावलपुर में कल 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन होंगे। 8:30 बजे सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के हवाले से पोलिंग शुरू होगी। लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर नदीम इकबाल चौधरी बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर किए गए हैं। इलेक्शन के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। महमूद जहीर ने ज्वाइन किया है। महमूद आगाह कीजिएगा। जी सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस कल इस हवाले से इलेक्शंस होंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाई कोर्ट बार के सदर हैं नदीम इकबाल चौधरी साहब, उनसे जानते हैं। सर कल इलेक्शंस हो रहे हैं तो क्या एसओपीज बनाएंगे? जी कल इंशाअल्लाह हमारी एपेक्स बॉडी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन है और भावलपुर डिवीजन के लिए जो पोलिंग स्टेशन है भावलपुर में डिवीजन में जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वोटर मेंबर्स हैं उनके लिए पोलिंग स्टेशन बहावलपुर हेडक्वार्टर पे होगा। हमारे तकरीबन 144 रजिस्टर्ड मेंबर हैं जो कल वोट कास्ट करने के लिए पूरे डिवीजन से तशरीफ लाएंगे और अपने नुमाइंदों को चुनेंगे। इसी तरह बहावलपुर और मुल्तान के एक सीट दी गई थी मेंबर एग्जेक्टिव के लिए, उसके लिए भी यहाँ के हमारे दोस्त जो हैं बाहर के मेंबर्स वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह कल हम पूरा एक खूबसूरत माहौल देंगे जिसमें हम जमहूरी इक़्तिदार और सेहतमंद टेंडेंसी को जो है फ़रोग़ देना चाहेंगे। जी अभी आप सुन रहे थे सदर नदीम इकबाल चौधरी साहब की जानिब से कि बताया जा रहा है कि 8:30 बजे से 5 बजे तक पोलिंग होगी और एक जमहूरी